Good morning, all students of the BSc first year classes. I was discussed in the previous lecture. We are left to the topic of the cell biology, in which the cell biology, what is the cell and their types, what is the shape and the size, and what about to the cell theory, which are known. So that I will try to understand about to the what is the cell and their size and the cell theory, so that we will try to understand about to the what is the cell organelles. So first of all, you are just to know that very well. What is the what about to the cell which are have to the plasma membranes, protoplasm or the cytoplasm, and their nucleus, that is the as you can say, that is the cell. The plasma membrane which are formed to the boundary, and that is the have to the their identity, and to the cytoplasm is the those of the plasm which are have to the inorganic and organic constitution, that to the power of the livingness, and the nucleus which are organizer, conductor, and have to the lot of the genes for the metabolic and the hereditary characters. So that as usual and literally which are very important in, as you can say, that is the cell is the proper is the cell is can say the cell is the structural and functional unit of the life of the organism and the particular animals. So we will just discuss about to the today is the within the cytoplasm of the cell, the numbers of the organs which refer to the differentiating to the cell is the prokaryote and the eukaryote. As a prokaryote and a eukaryote. Eukaryote is a highly well developed cell and the well organized cell, because which are have to the nucleus and there are the cytoplasm have to the organelles, to the mitochondria, Golgi body, endoplasmic reticulum, nucleus, and other organelles in the plant and animal cell. But in the proper, we are takes to the animal cell. We study in the zoology, so that I want to just about to the cell is the animal cell. So for the better knowledge and convenient knowledge, we will try to understand about to the particular topics, particular organelles, for the implementation, for the attempt to the question, and to the all the preparation, just attention for that to the examination. So we are returned to the organelles. Today organelles is a very important, very peculiar, and which are very commonly known is the mitochondria. आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर क्लास में के सेल बायोलॉजी से संबंधित जो चैप्टर है सेल और उसका जो साइटोप्लाज्म और उसके जो ऑर्गेनल्स होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हम जो कहते हैं कि हम जीवित हैं और बहुत सारी हमारे अंदर केमिकल प्रोसीजर चलते रहते हैं. ऑल द केमिकल प्रोसीजर, ऑल द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज विच आर गोइंग ऑन थ्रू द डिफरेंट काइंड्स ऑफ द ऑर्गेनल्स विच आर
suspended which are found into the cytoplasm, which recommended, which are specified, which referred to the particularly for the peculiar function, peculiar mechanism, peculiar processes for synthesis, for the degradation, for the production of the energy, for the secretion, and a lot of the functions which are performed by these kinds of the organelles which are found into the cytoplasm of the cell. So that we will go now to the today's topic of the mitochondria. What is the mitochondria and their functions, their structure, so that we will discuss about to the first thing is the all the things, all the cells, all the organelles and the procedure which are made by the Greek word. In the Greek word, what is the meaning of the mitochondria? Let us see here to the mitochondria is the one of the organelles which perform into the production of the energy. Mitochondria वो ऑर्गेनल्स होता है जो कि एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है, रेस्पिरेशन की प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है। एरोबिक जो सेल्स होती हैं, जो पर्टिकुलर हाईली एनिमल्स होते हैं जो एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की उपस्थिति होती है। और आपको बताना चाहेंगे कि दोज ऑफ द ऑर्गन्स ऑफ द एनिमल्स, particularly human beings, and those of the organs is particularly which goes to the lot of the functioning, so that where to the this kinds of organelles is present into the abundantly is present to the mitochondria, Golgi bodies and endoplasmic reticulum, because these are the performed to the chemical reaction which take part into the chemical reaction, production of energy, formation of the proteins, formation of the niacins and secretion of the enzymes, hormones, and these are the is a very important, very essential for the survival. So that सामान्यतः माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है हिंदी में। एनर्जी का प्रोडक्शन करता है और एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए ही ये पावर हाउस को नाम दिया गया है। सेल का पावर हाउस होता है, जितनी भी एनर्जी खर्च होगी, जहाँ पर भी खर्च होगी, जिस प्रकार के मैकेनिज्म में खर्च होगी, वहाँ पर ये एनर्जी प्रोवाइड करेगा, एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा, और वो एनर्जी एटीपी के रूप में संचित रहती है, वहाँ पे स्टोर रहती है, और जब ज़रूरत पड़ती है, जहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, जिस प्रोसीजर में ज़रूरत पड़ती है, जिस जगह पे ज़रूरत पड़ती है, जिस मैकेनिज्म में ज़रूरत पड़ती है, वहाँ पे वो एनर्जी खर्च होती है। तो आइए हम देखते हैं कि ग्रीक वर्ड में माइटोकॉन्ड्रिया को एक्चुअली में क्या बोला जाता है, कैसे बना है। मतलब अगर माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया दो शब्द से मिलके बना है। माइटो एक अलग है, कॉन्ड्रिया अलग है। तो माइटो का मतलब होता है, माइटो इज द थ्रेड, कॉन्ड्रिया इज द ग्रेन्यूल, मतलब थ्रेड एंड ग्रेन्यूल। द माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? थ्रेड ग्रेन्यूल्स है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, एक धागे की तरफ की संरचना दिखाई पड़ती है साइटोप्लाज्म में। जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन होता है, ड्यूरिंग टू द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन इन टू द लेबोरेटरी कंडीशन, व्हेन आर these kinds of the mitochondria look like as a thread like are the granular structure in the cytoplasm. So that we are go now into their Greek word. They are the formation of the mitochondria is the mito and the chondria. Mitochondria, the mito, it means that to the thread, and chondria is the granular structure, granules. So that there are the full name is the thread granules which found into the cytoplasm is referred to the as a mitochondria. तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने पहले ही बताया कि ये पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। जितनी भी एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, जो ग्लूकोज के माध्यम से बनता है, जो भी अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से बनता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का बहुत बड़ा रोल है, और वहीं पे ये रोल प्ले करता है। हम अभी आगे चर्चा करेंगे क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हम सबसे पहले इसके हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, बैकग्राउंड, फ्लैशबैक पे चलते हैं कि क्या, किसने इसकी खोज की, कहाँ पर की, कब, किस समय की, और उसको हम जानते हैं, थोड़ा समझते हैं। क्योंकि हमारे आपके सिलेबस में, बीएससी फर्स्ट ईयर के सिलेबस में इसके स्ट्रक्चर और फंक्शन को विशेष रूप से पॉइंट आउट किया गया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट
go now to their historical background of the mitochondria. In 1850, the scientist Kolliker first observed to the granular structure into the striated muscle. What is the striated muscles of the insect? Striated, unstriated, and to the cardiac. There are the three kinds of the muscles which are referred are found into the higher animals. तीन प्रकार के विशेष मसल्स होती हैं जो कि अरेखित, रेखित और स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स होती हैं. तो स्ट्रिएटेड मसल्स होती हैं जो स्ट्रिएटेड स्ट्रिएशन रखती हैं, स्ट्रिप्ड होती हैं, और जो कि क्या होती हैं स्ट्रिएटेड जो कि वॉलंटरी होती हैं, जैसे हमारी ये जो हाथ और पैर की जो मसल्स होती हैं वहाँ पे पाई जाती हैं. तो उसी प्रकार के स्ट्रिएटेड मसल्स में जो कोलिकल थे 1850 ईस्वी में जो स्ट्रिएटेड मसल्स होती है उसमें उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कोई ग्रेन्युलर लाइक, ग्रेन्यूल्स मतलब एक कड़िका में एक छोटा सा कोई टुकड़ा है, कोई थिंग्स है जो कि दिखाई पड़ता है ऑब्जर्वेशन के करने के आधार पे. तो उन्होंने उसको जो है सर्च किया, देखा और ग्रेनुलर स्ट्रक्चर नाम दिया. कोई एक पर्टिकुलर नेम नहीं दिया. उन्होंने बताया कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि वहाँ पे पाई जाती हैं जो कोलिकर थे 1850 में. आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अल्टमान और फ्लेमिंग का नाम आता है 1890 के आसपास. उन्होंने दो नाम दिए, अल्टमान ने फिला कहा और फ्लेमिंग ने इसको बायोपास कहा. तो अलग अलग नेम दिया गया. उसके आधार पे उन्होंने बताया कि ये जेनमिन यहाँ पे वर्क करता है. उसके आधार पे जो टर्मिनोलॉजी है माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया हमने जो डिस्क्रिप्शन किया कि माइटो का मतलब थ्रेड होता है और कॉन्ड्रिया का मतलब ग्रेन्यूल्स होता है, तो वो जो है सी बेंडा ने दिया. और 1898 ईस्वी में इन्होंने पहली बार इस टर्म का यूज किया जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से जानते हैं. तो सी बेंडा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पर्पज ऑफ द competition exam and their academic exam as well. So that if we are go now to the what is the structure and the function of the mitochondria, look just here to the structure of the mitochondria. Primarily is the graphical representation of the mitochondria, and on the basis of the graphics, on the basis of the diagram, we will describe and understand about to the what is the function and the structure of the mitochondria. We go now to the label. तो हमने बताने का प्रयास किया आपको कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो स्ट्रक्चर है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो फिलामेंटस स्ट्रक्चर कहा जाता है. जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है फिलामेंटस स्ट्रक्चर है, ग्रेनुलर स्ट्रक्चर है. वो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स बोला जाता है क्योंकि वो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है. साइटोप्लाज्म का एक भाग है जहाँ पे ये पाया जाता है, जिसके आधार पे हमने इसको साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स कहा. तो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, और जैसा मैंने बताया कि ऑल एरोबिक मसल्स, एनोबिक सेल्स ऑफ द हायर एनिमल्स, जितने भी हायर एनिमल्स होते हैं, जो हायर वंस हैं, जहाँ पे जो रेस्पिरेशन मैकेनिज्म होता है. क्योंकि मैंने कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया का जो संबंध है वो श्वसन से है, एनारोबिक रेस्पिरेशन से है, इसीलिए यहाँ पे एरोबिक सेल को नाम दिया गया है. जितने भी हायर एनिमल्स में जो एरोबिक सेल्स होती हैं उसका वो वहाँ पे जो साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है वहाँ पे वो पाई जाती है, और जो कि एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं. कैसे करेंगी वो हम आगे बताते हैं आपको. तो जो मैंने कहा कि साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक फिलामेंटस स्ट्रक्चर है. इसमें आप देखेंगे तो इस प्रकार का आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा जो अभी हम डिस्क्राइब करेंगे. तो इस प्रकार के स्ट्रक्चर में देखेंगे तो हमें दिखाई पड़ेगा कि कुछ विशेष प्रकार की इसमें एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उसका कुछ स्ट्रक्चर है. और जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के विषय में ये बता दें कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है एनर्जी का प्रोडक्शन करता है. तो एनर्जी का प्रोडक्शन तभी होगा जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा, और केमिकल रिएक्शन को पार्टिसिपेट होने के लिए एंजाइम और कोएंजाइम की आवश्यकता पड़ती है. द नीड ऑफ द कोएंजाइम एंड एंजाइम फॉर द production of the energy or any kinds of the chemical reaction which are related to the energy production due to the presence of the energy and the enzyme and the coenzyme is a very essential to proceed this process. तो केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए, आप एनर्जी के प्रोडक्शन को कंप्लीट होने के लिए, या फिर माइटोकॉन्ड्रिया की प्रक्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रक्रिया फंक्शन करता है उसको होने के लिए
एंजाइम और कोएंजाइम। एंजाइम और कोएंजाइम की बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शन तभी होगा हमारी बॉडी में जबकि एंजाइम कोई न कोई एंजाइम उपस्थित होता है। हम आपको एंजाइम के विषय में बता दें, एंजाइम कैटलिस्ट बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होता है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट की तरह वर्क करता है, और उसका काम इतना होता है कि वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो नहीं करता, केवल वहां पे उसकी उपस्थिति अनिवार्य है, तभी कोई केमिकल रिएक्शन हो सकता है। जब हम किसी भी केमिकल रिएक्शंस को देखते हैं तो वहां पे एंजाइम अगर प्रोडक्ट बनाना है कोई द सबस्ट्रेट एंड द रिएक्टेंट, तो वहां पे किसी भी सबस्ट्रेट के साथ में जब तक एंजाइम पार्टिसिपेट नहीं करेगा तब तक कोई नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता। तो उसी प्रकार से यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन होना है माइटोकॉन्ड्रिया के माध्यम से, तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन होगा, और केमिकल रिएक्शन जो होगा, मैंने कहा कि मेटाबॉलिज्म जो शब्द दिया जाता है उसके अंतर्गत है, तो वहां पे एंजाइम और कोएंजाइम की उपस्थिति होगी। और हम आपको ये भी बता दें कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो लाइपोप्रोटीनस स्ट्रक्चर है, लाइपोप्रोटीन फ्रेमवर्क होता है। ये जो फ्रेमवर्क बना है लिपिड और प्रोटीन का बना होता है, इसीलिए जो माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है फिलामेंटस और ग्रेनुलर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। द माइटोकॉन्ड्रिया इज अ लाइपोप्रोटीन framework which contain the enzyme and coenzyme required for the energy metabolism. During to the metabolism, that is produced to the energy, and that energy produces through the chemical reaction, and for the chemical reaction there is a very important the chemical reaction is one to that about to the enzyme and the coenzyme. So यहाँ पे आपने देखा कि एंजाइम और कोएंजाइम की बहुत ही बड़ी आवश्यकता होती है, और उसके आधार पे एंजाइम वहाँ पे वर्क करेगा और केमिकल रिएक्शन होगा। और फिर जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप ये समझिए कि अगर कोई ग्लूकोज हम जो है हेक्सोज के रूप में ग्लूकोज लेते हैं, तो वो जब उसके जो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन में ब्रेकडाउन जो बॉन्ड्स टूटते हैं, फिर वो बॉन्ड्स टूटेंगे तो वहाँ से एनर्जी निकलती है, और जो ये एनर्जी निकलती है यही एक्यूमुलेट होती है, तो यही एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे एंजाइम की उपस्थिति अनिवार्य है, कोई ना कोई एंजाइम वहाँ पे उपस्थित होगा, तभी ये ब्रेकडाउन होगा और तभी एनर्जी का फॉर्मेशन होता है। ड्यूरिंग टू द ब्रेकडाउन ऑफ दिस बॉन्ड्स in the carbon hydrogen oxygen which are made to the particular atom, particular molecules of the hexose, so that we are just go now into the graphics or the diagram. ये डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का, और माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम जो है मैंने कहा कि ग्रैनुलर फिलामेंटस स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में दिखाई पड़ता है। तो आप देखना चाहें यहाँ पे कुछ इसके स्ट्रक्चर को हम समझना चाहें, ये इसमें दो मेम्ब्रेन्स होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। देखिए आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो आउटर मेम्ब्रेन, तो इनर जो मेम्ब्रेन्स होती है वो गार्ड होती है, सराउंड होती है आउटर मेम्ब्रेन से। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया, जैसा मैंने कहा कि दो मेम्ब्रेन से आउटर जो मेम्ब्रेन्स होती है ये पोरीन प्रोटीन को कंटेन करती है। ये मैंने कहा कि एक्वेसियस चैनल का फॉर्मेशन करती है, जो कि पोरीन प्रोटीन को रखती है, और पोरीन प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है। उसी प्रकार से आप देखें कि इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो इम्परमेबल होता है, और इम्परमेबल जो होता है स्मूथ भी नहीं होता। ये जो आप देखें, थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से देखने का प्रयास करें कि ये आउटर मेम्ब्रेन हो गया, जैसा मैंने बताया कि यहाँ एक्वेसियस चैनल का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे पोरीन नाम की प्रोटीन पाई जाती है जो यहाँ पे पाई रहती है। और इसके बाद जस्ट देखिए इनर मेम्ब्रेन, ये देखें ये इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो स्मूथ नहीं होती, इम्परमेबल होती है। और इस दो इन बिटवीन टू द मेम्ब्रेन्स दैट इज द आउटर चैम्बर, इन दोनों के बीच में जो स्पेस पाया जाता है, जो जगह पाई जाती है, उसको आउटर चैम्बर बोला जाता है। और इस आउटर चैम्बर से इनर मेम्ब्रेन, दो इनर मेम्ब्रेन के बीच में जो स्पेस पाया जाता है उसको इनर चैम्बर बोला जाता है। आप देखें कि इसके बीच में जो स्पेस है आउटर चैम्बर, इसके बीच में जो है वो इनर चैम्बर बोला जाता है। तो इसके आधार पे आप देखेंगे कि यहाँ पर आउटर और इनर चैम्बर के माध्यम से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है। फिर हम देखें, वी आर जस्ट गो नाउ इनटू द इनर चैम्बर्स विच आर हैव टू द convolution. There are the convolution just like to the finger-like projections. That is the type of the convolution of the inner membrane which form to
finger like projections, and that finger like projection is called to the Christie. क्रिस्टी जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि इनर मेम्ब्रेन के कॉन्वोल्यूशन या इनवर्ड जो मूवमेंट होता है इसका, उसके माध्यम से इसका ये बनता है और उसी को क्रिस्टी बोला जाता है. On the Christie, numbers of the Christie which are convoluted, which are formed, are a finger-like projection type in the cytoplasm, in the mitochondria. ये देखें अलग अलग ये क्रिस्टी पाई जाती है. On the Christie, the F1 particle, oxysome, where are the Krebs cycle is the takes place. Krebs cycle is the procedure where the formation of the energy is the takes place. So that this is the very important place of the area of the mitochondria. Here to the Krebs cycle, which are disturbed by the Krebs, TCA, tricarboxylic acid, citric acid cycle as well, which are named as. So that is the process of the production of the energy, and that energy is used into the metabolic processes. So तो यहाँ पे ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स होता है. एलिमेंट्री पार्टिकल को F1 पार्टिकल भी बोलते हैं और F1 पार्टिकल को ऑक्सीसोम भी बोला जाता है. और करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं F1 पार्टिकल्स भी बोलते हैं इसको, पार्टिकल्स होता है, या फिर इसको ऑक्सीसोम भी बोला जाता है, ऑक्सीसोम भी बोलते हैं हम. तो ये जो होता है ये ऐसा प्लेस है जहाँ पे क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है. और क्रेब्स साइकिल ऐसी प्रक्रिया, केमिकल प्रक्रिया, जहाँ पे एंजाइम और कोएंजाइम की मदद से अलग अलग जगह पे अलग अलग रिएक्शंस में, अलग अलग केमिकल रिएक्शंस में वहाँ पे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है और कुछ जो है डिग्रेडेशन होता है, कुछ नई सिंथेसिस होती है. तो वो हम जो है अगले नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे उसको. तो आगे चलते हैं, हम देखते हैं ये अब इनके इनर चैम्बर, इनर जो मेम्ब्रेन्स है इसके अंदर जो है ये फ्लूइड होता है. और इस फ्लूइड को जिसको हम अगर सेल की उपस्थिति में पाया जाए तो उसको साइटोप्लाज्म बोलता है. उसी प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है तो उसको माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं. देखिए वही इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूशन और उसके और भाग होते हैं. और विद इन अ मैट्रिक्स दैट इज द mitochondrial DNA is also found. There are the three kinds of the organelles which are very important and have to the DNA, that is the mitochondria, plastids and the nucleus. So यहाँ पर भी इसका भी DNA पाया जाता है. हम यही आपको बता दें, जो DNA होता है वो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होता है. क्यों सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोला जाता है? क्योंकि ये क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है. जैसे हम अगर एक छोटा सा सेल बनाए, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, उसका ऑर्गेनेल्स होता है कोई भी. तो मान लीजिए ये माइटोकॉन्ड्रिया है तो इसके अंदर डीएनए है. तो ये क्या है, क्योंकि ये इस सेल का जो नियंत्रक है, कंडक्टर है, वो जो रेगुलेटर है वो उसका खुद का न्यूक्लियस है और उसके अंतर्गत जो डीएनए होगा, जो क्रोमैटिन फाइबर होगा, जो जीन होगा उसका नियंत्रण करेगा. लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया उसमें पाई जा रही है, जो इस तरीके से दिखाई पड़ती है, उसके बीच में ये डीएनए होता है. और ये डीएनए सेमी ऑटोनोमस कहा जाता है क्योंकि इसमें ये प्रवृत्ति होती है कि ये अपना स्वतः जो है वो क्या कहते हैं फॉर्मेशन कर सकती है. तो ये डीएनए है जो यहाँ पे हमने रिप्रेजेंट किया. 1 2 भी हो सकती है यहाँ पे संख्या में, ये डीएनए है. और इसमें देखिए इसके साथ साथ में ये क्या है, ये भी एक मैट्रिक्स है कि भी साइटोप्लाज्म की तरह है, फ्लूइड है, जहाँ पे राइबोसोम भी पाया जाता है. तो चूंकि ये क्या है, ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, इसलिए 780s राइबोसोम पाया जाएगा. देखिए हमने राइबोसोम की चर्चा की और संख्या में ज़्यादा पाई जाती है तो पॉलीराइबोसोम होती है. और दैट इज द प्लेस ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस. राइबोसोम अभी हम आगे के टॉपिक्स में जब चर्चा करेंगे तो राइबोसोम जब आएगा ऑर्गेनेल्स, वहाँ पे चर्चा होगी कि ये इसका काम है प्रोटीन का सिंथेसिस करना, प्रोटीन को बनाना. और अलग अलग प्रकार के बहुत सारी प्रोटीन्स होती हैं जो कि अमीनो एसिड के बेस पे बनती है. और वो जो अमीनो एसिड लगातार जुड़ती रहती है और सीक्वेंस में अल्टरनेट क्रम में जुड़ेंगे और अलग प्रकार के प्रोटीन बनाएंगे. यही अलग अलग प्रकार के प्रोटीन मिलके अलग अलग चीज़ों के परफॉर्मेंस, एंजाइम, हार्मोन्स और जो भी चीज़ें हमारे शरीर में जरूरत है उस प्रकार से करती है. तो आप देखें इनर चैम्बर हो गया, राइबोसोम्स हो गया. अब इनके बीच बीच में कैल्शियम, मैग्नीशियम ग्रेन्यूल्स भी पाई जाती है. और ये इंक्लूजन्स बोला जाता है, इंक्लूजन्स भी होती है यहाँ पे. इंक्लूजन्स का कोई वर्क यहाँ पे आज तक नहीं जाना गया क्या होती है. तो इस प्रकार से देखेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है इंक्लूजन यहाँ पे, जहाँ पे
प्रक्रिया होती है, और यहाँ पे ये एंजाइम में कोएंजाइम यहाँ पे उपस्थित होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल की जब प्रक्रिया होनी होगी उस टाइम में वो प्रक्रिया परफॉर्म करती है। तो ये देखा हमने, तो आपने देखा आउटर इनर की। अब यहाँ पे हम आपको बता दें कि इसका जो मेन रोल है, अब देखिए यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे दो इसके साइड होते हैं, दो साइड, एक यम साइड होता है, एक जो है ये, एक जो है सी साइड होता है। यम साइड क्या बोलते हैं? यम साइड मेम्ब्रेन फेसिंग, ये देखिए ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसको फेस करता है, तो ये यम साइड बोला जाता है, यम साइड। और जब ये चैम्बर की तरफ होता है ये स्पेस, तो उसको बोलते हैं सी साइड, साइटोसॉल, मतलब ये और ये। तो यम साइड और सी साइड को भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, तो आपने स्ट्रक्चर देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या है। यहाँ पे आउटर इनर मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर इनर चैम्बर्स होती हैं, इनके बीच में एक डीएनए पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया राइबोसोम्स होती हैं, ऑक्सीसोम्स इस पे पाई जाती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसको क्रिस्टी बोलते हैं, और यहाँ पे क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है। तो बेसिकली रूप से आप देखेंगे जब इसका फंक्शन हम जानने का प्रयास करते हैं कि जैसा मैंने पहले भी बताया, एज यू नो दैट वेरी वेल अबाउट टू द इन द बिगिनिंग ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, I will mention about to the function of mitochondria. Mitochondria is the powerhouse of the cell. तो पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो इसका मतलब एनर्जी का प्रोडक्शन करेगा, और एनर्जी का प्रोडक्शन जो करेगा तो उसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार का एनर्जी, कैसे एनर्जी करता है। हम आपको थोड़ा सा बता दें, एनर्जी का प्रोडक्शन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है, लेकिन क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया तभी होगी जब ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हो जाएगी। तो हम आपको स्पेस बता दें, ग्लाइकोलिसिस की जो प्रक्रिया होती है वो सेल में होती है, और जो क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होती है वो आपके माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, उससे राइबोसोम पार्ट में, F1 पार्टिकल में होती है। एंजाइम कोएंजाइम की उपस्थिति यहाँ पे अनिवार्य है। अब यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया में होने में डिग्रेडेशन होगा, डिग्रेडेट करके वो माइटोकॉन्ड्रिया जो ग्लूकोज होता है, जो डाइजेशन के माध्यम से सिंपलेस्ट होकर हमारे सेल में आया है, वो उसको क्या करेगा, वो वहाँ से डिग्रेड होगा, और डिग्रेड होने में जो प्रत्येक हमारी सेल है उसके अंदर जो ऑर्गेनल्स है वहाँ पे उसके साइटोप्लाज्म में पहले ग्लूकोज टूटेगा, ग्लूकोज टूट के पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होगा। वन ग्लूकोज इज डिग्रेडेड इनटू टू पायरुविक एसिड, एंड दैट इज द पायरुविक एसिड फर्स्ट ऑफ ऑल गो इनटू द रिएक्शंस फॉर्म टू द एसिटिक एसिड, एंड द ज्वाइन टू द coenzyme is the converted into the acyl coenzyme, and then is go now inside to the mitochondria, and that is the place of the mitochondria is the F1 particle where are the Krebs cycle is takes place। तो यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होने के बाद ही क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होगी। तो हम देखेंगे कि क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया क्या होगी, ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स साइकिल के बीच की क्या प्रक्रिया होगी। इन सारी प्रक्रियाओं को देखने के बाद हम देखेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, कैसे चल रही हैं। जो इसका इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो हम बता दें आपको कि जैसा मैंने कहा कि ये एनर्जी के प्रोडक्शन में भाग लेगा, हीट के प्रोडक्शन में भाग लेता है, बायोसिंथेसिस में भाग लेता है, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं जो कि हम मेंशन करेंगे अगले चैप्टर में। तो आप यहाँ बेसिकली रूप से समझिए कि इसका मेन बेसिक जो फंक्शन है वो है एनर्जी का प्रोडक्शन, और एनर्जी के प्रोडक्शन के आधार पर ही यहाँ पे इसको पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। एटीपी का फॉर्मेशन करेगा, और एटीपी का फॉर्मेशन करने के बाद ही ये जो है जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फंक्शन में सबसे पहले जैसे हम देखेंगे ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया होगी, फिर ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन की प्रक्रिया होगी, फास्फोरिलेशन की प्रक्रिया होगी, और फिर क्रेब्स साइकिल की प्रक्रिया होगी। तो इन ड्यूरिंग में इसमें जो है करीब करीब 40 एटीपी का, या फिर कह ले सकते हैं 38 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया को शामिल कर लेंगे तो हमें 2 एटीपी का नुकसान होता है, इसलिए हम जो है 2 उसमें से माइनस कर देते हैं, तो 38 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। ये एटीपीज, या फिर ये कहें कि माइटोकॉन्ड्रिया का ये जो रोल है, फंक्शन है, कैसे होगा, ये जो है हम अगले लेक्चर में बताएंगे, उस प्रकार से देखेंगे कि क्या है ये।
तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमने आज देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर क्या है, उसका नाम क्या है और ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, विजुअली रूप से इसमें क्या डिस्टिंक्शन है, क्या इसके इंपॉर्टेंट प्लेस है, और यहाँ पे हम देखेंगे। अगले चैप्टर में हम ये बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, ग्लाइकोलिसिस क्या होती है और क्रेब्स साइकिल क्या होता है, तब और उसके ऊपर चर्चा करेंगे हम। और तब उसके लिए हम जो है तब तक के लिए हम जो है इसको यहाँ पे टॉपिक को क्लोज करते हैं। थैंक यू।